Assalamu alaikum students. In today's lecture, we will derive a relation for wave number. Then defects of Bohr atomic model will also be discussed. Along with it, I will give you the hints to solve the self-check exercise. Now students, before I go to derive for the wave number, you should know what is meant by or what is the definition of mu bar or the wave number. As I told you earlier, frequency क्या होती है? How will you define it? Number of waves passing per second, that is termed as frequency. टाइम पीरियड के लिहाज से, ठीक है। और जब इसको हम लेंथ के लिहाज से ले लेंगे तो then it will be termed as the wave number, that number of waves passing per unit length, that is termed as wave number, right? The relationship is given, frequency is equal to c mu bar. Consider it as equation number 14, where c is the velocity of light. As you know, it has a fixed value. Then putting this value of v, that is frequency, from equation 13 into equation 14. Equation 13 kya thi? That was we have done in the previous one lecture, that is the derivation of frequency जो आपने किया उसमें यहाँ पे एक छोटा सा मैंने इसके लिए यहाँ पे रिकॉल करने के लिए आपके पास लिख दिया है. दिस वन इज, ये मैंने मेंशन किया है, दिस वन इज the equation which is under consideration. आपने पढ़ा था डेल्टा E is equal to h mu. तो डेल्टा E के जो टर्म था that was equal to me4 over 8 epsilon naught square h square in the bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. अब मैं अगर डेल्टा E की जगह h mu ले लेती हूँ तो then I can write this equation like this as it is given. और इसके बाद आपके पास में आ जाता है जनाब, अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, जस्ट आई हैव टू मूव द प्लैंक कांस्टेंट टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट? सो me4 over 8 epsilon naught square h cube in the bracket 1 upon n square and minus 1 upon n2 square, right? अब ये आपके पास में साथ में यूनिट्स दी हुई हैं फ्रीक्वेंसी की, राइट जी? नाउ हियर आई हैव टू प्लेस दिस वैल्यू. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 13 है जो कि मैंने इक्वेशन 14 में प्लेस की, और आपके पास जो है वैल्यू आ गई ये दिस वन, म्यू बार सी इज इक्वल टू me4. आगे काम आसान है कि आपने c वेलोसिटी ऑफ लाइट को c को भी दूसरी तरफ ले जाना है on the other side of the equation. So you will get there mu bar is equal to me4 over 8 epsilon naught square h cube c 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This is termed as equation number 15. Now come to the next one. Here these terms, that is me4 upon 8 epsilon naught square h cube c, that can be taken as a constant because all these have the fixed values, right? So all these are the constants, right? So r is taken as their, what you say, representative. It is termed as the Rydberg's constant, and जब हम इन सब की values place करें so the value which we get, that is 1.09678 into 10 power 7 per meter, right? पर लेंथ ये आपके पास में, ठीक है, लेंथ के लिहाज से तो ये आपके पास में मीटर में इसको डिटरमिन किया गया है. नाउ न्यू बार किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू आर, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, और बाकी ये आपके पास में इक्वेशन टर्म हो जाएगी लाइक इन द ब्रैकेट 1 upon n1 square माइनस 1 upon n2 square. आपको जिन दो लेवल्स के रेफरेंस से आपको वेव नंबर चाहिए दैट यू हैव टू प्लेस इन इट. रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लगाइए, ठीक है, और अगर इंडिविजुअल वैल्यूज याद हैं तो वो प्लेस कीजिए. बेहतर होगा आप इसकी ये जो कांस्टेंट एक वैल्यू आ गई है उसको याद प्रिपेयर कर लीजिए, उसको लर्न कीजिए अच्छी तरह से एंड प्लेस दिस वैल्यू इंस्टेड ऑफ आर, so you can get the, or you can calculate the wave number for the different on electrons in different orbits, right ji? Now come to the next one. Next one आपके पास में आ जाते हैं defects of Bohr's atomic model. Here Bohr's atomic model was a successful model, right? But still it has some defects in it.
Now, what the defect one was there, that according to Bohr, the radiation the results when an electron jumps from one energy orbit to another energy orbit, but he did not explain how this radiation occurs. कैसे होता है ये, क्यों कर ये रेडिएशन जो एमिट होती है आपके पास में, और ये कंटिन्यूअस आपके पास इमिशन जाता है या फिर लाइन स्पेक्ट्रा बनता है। हमने तो ये पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम बनता है आपके पास में। नाउ हियर इट इज गिवन, ये एक अदद आपके पास में एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिजाइड कर रहा है, लेकिन अगर इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में मूव करना है तो फिर इसको क्या करना होगा, इट हैज़ टू एब्सॉर्ब सम रेडिएशन, इसको एब्जॉर्ब करनी होगी रेडिएशन, तब ये जाके ऊपर वाले ऑर्बिट में जा सकता है। और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा, लेकिन अगर उसको डाउनवर्ड वापस आना है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में से, एक्साइटेड स्टेट आपको याद है ना, कल भी हमने किया था, दैट एक जो इलेक्ट्रॉन है इट इज रिजाइडिंग इन द फर्स्ट वन ऑर्बिट और इन इट्स स्पेसिफिक ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी, तो वो इसका ग्राउंड स्टेट है। और अगर इसको मूव करना है किसी और ऑर्बिट में फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर वन ऑर्बिट 2, 3, 4, 5 और 6, तो उसको एनर्जी चाहिए टू मूव टू द अपर, क्योंकि अपर ऑर्बिट की एनर्जी हाई है। तो ऐसा करने में वो कुछ ना कुछ लाइट में से, आपको पता है ना लाइट जो है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रेडिएशन इन इट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स और इंफ्रारेड लाइट और विजुअल लाइट, विजिबल लाइट जिसे कहते हैं, दे ऑल। ठीक है, तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा इन लाइट वेव्स को, फिर ये जाके मूव करेगा टू द अपर वन हायर लेवल्स, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से वापस आना है नीचे टू द लोअर एनर्जी लेवल, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था टू मूव अपवर्ड, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जो दो पिक्चर्स हैं दे आर गोइंग टू टेल यू कि इसमें जो फर्स्ट वन पिक्चर है इसमें इलेक्ट्रॉन ने जो है एक्साइटेड स्टेट से वो आया है ग्राउंड स्टेट पर, एक्साइटेड स्टेट से, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, ये जिसमें से वो नीचे वाले लोअर लेवल पे आया है, फ्रॉम द अपर हायर लेवल से लोअर लेवल में आया है। और इसने जब ऐसा किया तो ड्यूरिंग दिस इट हैज़ गिवन आउट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी, राइट। तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ गया। नाउ सेकेंड वन आपको ये शो कर रहा है कि फोटोन, ये आपके पास में ग्राउंड स्टेट में था, इसने एब्जॉर्ब की लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और यहाँ से ये जंप कर गया टू द हायर एनर्जी लेवल, सो इट कम्स टू दैट ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये अपनी जो इतनी जिसकी अपनी पोटेंशियल है इसका उससे ज़्यादा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, तो इट जंप फ्रॉम दैट ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल टू द अपर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास में फिनोमेना कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशंस को और ये एमिट कर रहा है रेडिएशंस को, इट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय Bohr's atomic model. Then next one there, Bohr's theory explained the existence of various lines in hydrogen spectra. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आपके पास में आता है जब हम कहते हैं जो लाइट जो पास कर रहे हैं आप इसमें से रेडिएशंस, तो जब एटम में से पास की जाती है और उस लाइट को जब आप पास करते हैं थ्रू दैट ऑफ द प्रिज्म तो ब्रेक अप इनटू डिफरेंट लाइंस। ठीक है, तो ये आपके पास में हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा लिया गया, स्पेक्ट्रम होता क्या है, विजुअल डिस्प्ले है ऑफ दैट ऑफ द डिफरेंट वन लाइट का, आपके पास में डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स का विजुअल डिस्प्ले है फॉर एन एटम एंड स्पेसिफिक फॉर ईच एटम, राइट। तो आपके पास में है कि Bohr's theory explained the existence of various lines in hydrogen spectrum, but it predicted that only a series of lines exist. Series of lines. लेकिन अगर हम higher one spectroscopic या microscope यूज किया गया तो it was found कि ये जो एक single line इसमें जो आपके पास में एक series of lines जैसे consider की जा रही है, it is further divided into a number of lines in it. ठीक है, जो कि बहुत क्लोज है आपस में। सो हाउ, ये कैसे पॉसिबल है, या ये क्या चीज़ आगे जो है वो बताती है, रियलाइज कराती है।
right जी. If you remember, the spectrum is due to the presence of different energy orbits की वजह से बनता है. इसका मतलब है इन ऑर्बिट्स के अलावा भी जब स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर ब्रेक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन ऑर्बिट्स के अलावा भी इसके अंदर और सब ऑर्बिट्स या सब शेल्स या आपके पास में ऑर्बिटल्स दे आर आल्सो प्रेजेंट. ठीक है, जब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की गई देन इट वाज बीइंग फाउंड. राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन्स. हाँ, ये सिर्फ एप्लीकेबल है बेटे, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर्स में ऑफ द बोहर्स थ्योरी बताया था आपको कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है टू मोनो एटॉमिक सिस्टम्स, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. मोनो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स single electron containing substance. It is only applicable to single electronic system like that of hydrogen, helium +1, lithium +2. lithium का total आपके पास में 3 होता है atomic number, but when 2 are given out तो only 1 is left behind. beryllium का 4 होता है atomic number, जब इसमें 3 किक आउट कर दिए +3 का मतलब है 3 electrons removed, तो पीछे रह गया 1. तो ये सारे के सारे हीलियम +1, लिथियम +2 एंड बेरिलियम +3 दे ऑल बिकम्स मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. ठीक है, अब ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे तो सक्सेसफुली एप्लीकेबल था, लेकिन जब स्पेक्ट्रा और different atoms which have more than one electron in them that was applied, उनका स्पेक्ट्रा फाइंड आउट किया गया, तो it was quite complicated. ठीक है, तो इट इज़ नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जो स्पेक्ट्रा पोली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो हैं वो उनका बन के आ रहा है. ठीक है जी, सो ये आपके पास में चला जाता है. नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन हाइड्रोजन एटम व्हिच इज इन एक्साइटेड स्टेट, excited state it's producing the emission spectra. if you remember कि atom excited कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है उसने जंप किया फ्रॉम लेयर से हायर एनर्जी, और वो हायर एनर्जी से जब लोअर स्टेट में आएगा तो वो डेवलप करेगा emission spectra. emission means to give out energy, उससे एनर्जी वो खुद लाइट प्रोड्यूस करेगा, फोटॉन्स जनरेट करेगा. राइट, when such spectra is placed under the influence of magnetic field, तो जो lines बन रही थी without this magnetic field as it is shown in this picture, without magnetic fields जो spectral lines produce हो रही थी, under the influence of magnetic field वो lines further break up हो गई या split up हो गई into the closely spaced lines में, like this. ठीक है, एक लाइन फर्दर डिवाइड हो गई इनटू मोर देन वन लाइंस. सो दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज ज़ीमैन्स इफेक्ट. दिस एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी गिवन बाय बोहर्स मॉडल कि व्हाई डज इट हैपन कि एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो 3 में फर्दर डिवाइड कैसे हो गई. राइट, एंड इट इज नॉट एक्सप्लेन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ अ सब्सटेंस, द सेम थिंग इज डन कि यही emission spectra when it is placed in the electrical field. Now two fields were there, एक हमने अप्लाई कर दिया दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और अब सेपरेटली वही एक्साइटेड एटम जो हाइड्रोजन का है उसको आपने जो प्लेस किया है अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, एंड इट इज व्हेन इट इज अ प्लेस हियर. तो वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इमिशन स्पेक्ट्रा. इमिशन तब होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से अपनी लो एनर्जी स्टेट पे वापस आता है, अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने ऊपर जाने के लिए यूज़ की थी वही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, सो द सच स्पेक्ट्रा इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड. और इसमें भी सेम थिंग हैपन कि जो एक सिंगल लाइन प्रोड्यूस हो रही थी पहले इन द स्पेक्ट्रा, दैट वाज फर्दर डिवाइडेड और स्प्लिट इनटू द डिफरेंट वन small lines. So this is termed as Stark effect. Right, these two definitions are asked in exams. Right, Bohr theory has no explanation for this as well कि why does it happen कि एक लाइन जो है वो आपके पास में फर्दर स्प्लिट अप हो गई इनटू सेवरल अदर लाइंस.
The next point is that according to Bohr, as he suggested, that there are present circular orbits around the nucleus for the electrons to revolve, right? As in hydrogen atom. But later on it was proved that motion of electron is three-dimensional. It is not going to take place in a single plane. So how does it happen? एक ही plane में आपके पास नहीं है, बल्कि ये three-dimensionally move कर रहा है. तो how is it possible? ये भी Bohr model जो है explain नहीं करता. Now students, according to Bohr, an electron in atom is located at a definite distance from the nucleus, and it is revolving there with a definite velocity or a fixed velocity. So its momentum is also fixed, as it's the product of mass into velocity. So momentum will also not change when velocity is fixed, right? Now, it was opposed by Heisenberg. Heisenberg were also a scientist or a physicist who gave a principle called Heisenberg's uncertainty principle. According to him, it is not possible to determine the exact position and momentum of a moving particle simultaneously with certainty, right? Experimentally, it is not possible to determine the both exact position and momentum of the electron, right? So the next point is what you say, Schrödinger was the scientist. वो भी एक फिजिस्ट था जिसने एक इक्वेशन डिराइव की which is termed as wave equation for hydrogen atom, और उसने वेरीफाई किया जो बोहर का ये जो उसने पोस्टुलेट दिया था ऑफ डेफिनेट पोजीशन एंड डेफिनेट वेलोसिटी और डेफिनेट मोमेंटम का, कि एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वन पोजीशन तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज the possible, right? Probability means you can say that at how much distance the electronic cloud is present, right? Or electron is residing from the center, from the nucleus, right? So the minimum distance was found as 0.53 nanometers in length में आपके पास में आ जाता है, ठीक है? सो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसने जो दी है वो वेरीफाई करती है बोहर के इस पोस्टुलेट को कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका, अब वो आपके पास में, या रेक्टिफाई समझे किया है इसको, कि जो आपके पास में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की और उसका जो पोजीशन है दोनों तो कैलकुलेट नहीं हो सकते, लेकिन सर्टेनिटी आपके पास में है कि इतने पर्टिकुलर लेवल पे या डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ज़रूर है, right ji? So this is all about the defects in Bohr's atomic model and its rectification by help of the Schrödinger wave equation, right? Now students, the lecture is over. You have to solve this assignment right now. You have 1 day time. Solve it and send your answers. I will give you the marks for this assignment, right? Each one is of 3 marks, right ji? Now here 6 questions are given. Question 1 is from that of the, कहाँ से लेंगे, calculate the value of A naught of hydrogen atom. हिंट आपको दे देती हूँ, बोहर्स रेडियस की जो इक्वेशन है वो आप लेंगे इसमें. Similarly सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. अगेन जो रेडियस के लिए हमने डिराइव किए इक्वेशन वो उससे हेल्प लेंगे हम. फिर आ जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इन द एक्सप्रेशन, दैट इज के इज इक्वल टू, ये आप ले लेंगे जो एनर्जी की जो आपके पास में एक्सप्रेशन आया उसमें के इज बीइंग मेंशन्ड हियर. यहाँ से थोड़ा सा कट किया है, आप इसको एग्जैक्ट वन ले लें फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट से, ठीक है? Similarly, question 4 relates to the calculate energies of N1, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है हीलियम प्लस के लिए,
जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और लिथियम +2 के लिए है जिसका एटॉमिक नंबर है 3। तो Z की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सो इनको प्लेस कीजिए और एनर्जी कैलकुलेट करके दीजिए इनकी, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू जंप फ्रॉम N2 to N4। या तो आप इसमें जो है दोनों की अलग अलग एनर्जी की इक्वेशंस लगाइए और एक में वैल्यू जो n की है वो 2 प्लेस करके वैल्यू निकाल लीजिए और फिर n की वैल्यू 4 प्लेस करके वैल्यू निकाल लीजिए एनर्जी की, और फिर आप इसको कर दीजिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम सेकेंड लेवल, जिसमें 4 लेवल थे, तो 4 माइनस आपके पास आ जाएगा E4 माइनस E2। इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या फिर आप इसको डिराइव कीजिए फ्रॉम द इक्वेशन मेंशन इन योर बुक related to that of the energy which is given over there on the page। किस वाले पेज में मिलेगी आपको? पेज नंबर 33 चेकआउट कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इससे आप ले लें जनाब इसकी वैल्यू को और इसको फाइंड आउट करके दीजिए मुझे, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन आपके पास में आ जाता है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सब चेक देख लीजिए। कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। पर एटम के लिए आपको चाहिए, नॉट पर मोल के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी की जो कैलकुलेशंस है, इसकी इक्वेशन जो फाइनल वन है वो आपने लेनी है जनाब बुक से देख के और वहाँ पे कंसिडर कीजिए और ये अप्लाई कीजिए आप इसको। देन आपके पास में सेकंड वन है कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ये आपने कन्वर्ट करना है इनमें। यहाँ पे आपको हैंड जो उसने दिया है कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पेज नंबर 33। यहाँ से हेल्प लीजिए। जो इक्वेशन आपके पास में डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, राइट। तो इसमें इस वैल्यू को प्लेस करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो इन्फिनिटी होती है दैट इज N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, राइट जी। तो ये आपके पास में आ जाएगा। आप मुझे सॉल्व करके इसका डे आफ्टर टुडे आप मुझे इनके आंसर सेंड कीजिए। आई विल गिव द मार्क्स फॉर ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट, राइट जी। अल्लाह हाफिज़।